Good morning class. Today we start with class 8 history chapter 8 women class and reform, and this is our fourth lecture, and our first topic is women right about women. So let's see what are the main topics regarding the women right about women. So from the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh, and another remarkable woman, Begum Rokia Sukawat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. So class, in last classes we have studied about the girls going to school. In this topic we know that most of the Muslim women were taught in homes by a Muslim teacher in a Arabic language and based on Quran. So this was very beginning of the start of getting education for the Muslim or the aristocratic Muslim family in the North India. So in this topic we know that in this context the education for Muslim women were encouraged by many reformers like Begums of Bhopal and Begum Ruqayya Sakhawat Hussain, who started a school for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. So we know that Begum Ruqayya Sakhawat Hussain was a very bold lady, and he was always criticizing the conservative ideas of the people in a society and arguing the religious leaders about the faith according to the inferior to the woman. So हम कह सकते हैं जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो है वो एक बहुत ही लीडर महिला थी, और वो जो है हमेशा जो कंजर्वेटिव आइडियाज होते हैं जो भी सोसाइटी में या फिर समाज में जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके खिलाफ ये लड़ती थी, और ये कहती थी कि किसी भी लीडर से या फिर किसी भी लीडर से ये हमेशा आर्ग्यू करती थी कि जो फेथ है, जो हमारा बिलीव है इन गॉड, उनके हिसाब से वुमेन्स और मेंस में किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट ये सारा का सारा जो भी चीजें है वो ह्यूमन के द्वारा ही किया गया है, ना कि भगवान के द्वारा. सो बाय द 1880s Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. So इसके बाद जो है हम कह सकते हैं by the 1880s most of the women began to enter in universities. बहुत सारी महिलाएं जो है वो यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना शुरू कर दी. फिर इसके बाद इनमें से बहुत सारे वुमेन जो है वो डॉक्टर्स और टीचर्स बन गए, एंड मेनी वुमेन बिगेन टू write and publish their critical views on the place of women in the society. इनमें से बहुत सारी महिलाएं जो है वो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने पोजीशन ऑफ ए वुमन इन ए सोसाइटी को दिखाना शुरू कर दिया बाय देयर आर्टिकल्स. एंड ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, published a book called Satri Purushatulana. So there is a book called Satri Purushatulana, Stri Purush Tulna. Okay, so his book name was a book was written by Tarabai Shinde, who belongs to Pune, and he published a book called Stri Purush Tulna. In this book, a comparison between women and men was written. So ये जो बुक लिखी थी उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना, इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है मैन और वुमन के लाइफ पे, जो भी राइट्स वुमन को मिले हैं या फिर जो भी राइट्स मैन में, या फिर क्या डिफरेंसेस हैं उनके इन सोसाइटी, इसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमन. और यहाँ पे उन्होंने जो भी नकारात्मक चीजें हैं मैन और वुमन के संबंध में
इस चीज को उन्होंने बाहर लाया। उन्होंने इस बुक के थ्रू ये बोलना चाहते थे कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो ना कि लोगों की सोच में है, उनके कंजर्वेटिव आइडियाज में है, नॉट इन द रिलीजन। मीन्स धर्म में इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, बट जो भी चीजें हो रही है वो मानव जनित है। मीन्स उनके माइंड से ही ये निकला है, नॉट द रिलीजन वाइज। सो पंडित another great reformer like Pandit Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. So यहाँ पे हम कह सकते हैं एक और वुमन आई जो कि बहुत ही ज्यादा वर्चुअल थे, या फिर उनका जो आइडियाज है बहुत ही लिबरल थे। सो उनका नाम है पंडित रमाबाई, और ये एक स्कॉलर थे, ये एक विद्वान थे संस्कृत में, और ये जो है वो ये एक बहुत ही ऑप्रेसिव वुमन थी। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमन। तो इन्होंने अपने जो बुक है उसमें लिखा कि जो अपर कास्ट वुमन है इनकी लाइफ जो है वो किस तरह की है, या फिर इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उन्होंने जो ऑप्रेसिव जो है मीन्स कह सकते हैं जो कठिनाइयां या फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इनके बारे में इन्होंने अपने बुक में लिखा है। शी फाउंडेड ए widows home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. So इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमन। सो इन्होंने एक शेल्टर खोला है जिसमें जितने भी विडोज थे ऑल ओवर द इंडिया, जो कि उसके पेरेंट्स से या फिर उसके हस्बैंड से या फिर उनके रिलेटिव्स से जो परेशान किए गए वुमेन्स हैं, उनको वो इस शेल्टर में रखती थी और उनको एजुकेशन देती थी। हियर वुमेन वेर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। और ये जो आश्रम है या फिर हम कह सकते हैं विधवाश्रम है, यहाँ पे इन्होंने उन वुमेन्स को एजुकेट किया, एजुकेट उनको जो है टेक्निकल स्किल्स दिए और उनको कुछ कार्य सिखाया जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व कर सके। सो needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. So जैसे ही इनका जो कार्य था, पंडित रमाबाई ने जो भी चीज की फॉर द वेलफेयर ऑफ द विडोज, इसको जो है आम जनता ने इसको बहुत ही नेगेटिवली लिया। और ये लोग मानते थे कि ये जो भी चीजें हो रही है ये वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली हो रही है। अगर वेस्टर्न कल्चर इस तरह से अपनाया जाएगा तो हमारे कल्चर में या फिर हमारे हिंदू कल्चर में जो भी वैल्यूज हैं, जो भी रेस्पेक्ट्स हैं, जो भी कल्चर है, वो सारा का सारा क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और इससे इस पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द कल्चर ऑफ द हिंदू और हिंदुइज्म। So, as you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through law for female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and the socialist movement for the 1920s. So जैसे ही ये सारी बातें होने लगी तो यहाँ पे बहुत सारे वुमेन जो है वो आगे आए। उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने बुक्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करना शुरू कर दिया। और उनके राइट्स जो भी थे सोसाइटी में उनको उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द वीमेन एसोसिएटेड विद ए प्रेशर ग्रुप, वो प्रेशर ग्रुप में ज्वाइन की और उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर किया कि वुमेन्स के लिए भी कुछ राइट्स दिया जाए, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए और सरकार पे दबाव डाला। और इसी तरह से हम कह सकते हैं वुमेन की जो लाइफ थी वो बहुत ही तेजी से चेंज होने लगी। और बहुत सारे वुमेन्स ऐसे भी थे जिन्होंने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया in the year 1920.
So in the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. जैसे ही ये सारी बातें सामने आई तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एंड प्रोमिनेंट लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने भी वुमेन्स के सपोर्ट में काम करना शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि वुमेन्स को भी सोसाइटी में, समाज में इक्वालिटी और फ्रीडम मिले. Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles. लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जैसे ही हम आजाद होंगे, इस आजाद भारत में हर मर्द और औरत को हम जो है राइट टू वोट देंगे और सारा जो इंडिपेंडेंस है वुमेन्स के लिए ये भी देंगे. लेकिन ये जो मूवमेंट है अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक करें और हम इंडिपेंडेंस ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स जो है इस पे ज्यादा ध्यान दें. लेकिन इन्होंने कहा कि हम वुमेन्स के लिए हर वो काम करेंगे जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ये हम जरूर करेंगे. इन दोनों ने प्रॉमिस किया. लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि आप सबको अभी इन मुद्दों पे नहीं बल्कि एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम जो है अंग्रेज से क्या हो सके, आजाद हो सके. सो क्लास, दिस वर द सम points regarding this topic, women right, about the woman. So let's see some of the major points regarding this topic. So first is Muslim women like Begums of Bhopal. Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education for women. Women and founded schools in Aligarh. Begum Ruqayya Sakhawat Hussain. Schools for Muslim girls in Patna and Tajika. In 1880s, Indian woman began to
universities, some of them became doctors and teachers. Tarabai Shinde wrote a book स्त्री पुरुष तुलना to criticize the social differences between man and woman. Man and woman. Pandit Ramabai a scholar of Sanskrit, wrote a book about the miserable lives upper caste women. Upper caste women. She founded a widow home. She founded a widow home at Pune. For married treated women. For badly treated woman. By husband and relatives.
So in 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. So class, these are the major points regarding the women right about women. So class, our next topic is caste and social reforms.